So now let's see this passage from the 2025 paper, right? So this is a very good passage. This is about environment, right? Environment से लिया गया passage है. तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट आई हैव सीन लाइक दे यूज देयर नॉलेज फ्रॉम द जीएस, राइट? पर यहाँ पे हमें जो पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स रीड द पैसेज. मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम just to conserve biodiversity will affect the commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. So it's talking about the ecosystem, right? So ecosystem, if we are just क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंजर्व कर रहे हैं, राइट? सो इट विल निगेटिवली इंपैक्ट, राइट? किस किस पे निगेटिवली? कमर्शियल पोटेंशियल पे, राइट, एंड लाइवलीहुड पे. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation, or strictly for conservation, right? So there are three things, right? So if we are using the ecosystem only for livelihood, there are also a conflict. If we are using ecosystem just for commercial exploitation, right, there also we are having conflict. Okay, now deforestation caused due to commercial exploitation, right? So due to commercial exploitation, what is happening, right? Now deforestation is happening because of commercial exploitation, right? Will lead to indirect harm like flood, right? Like flood, siltation problem, right? And microclimatic instability, right? So climatic instability will come. Apart from adversely affecting livelihood, it will also affect, right, livelihood. It will negatively impact the livelihood dependent on the forest. These conflicts are particularly acute in developing countries, right? ये जो conflict है वो ज़्यादा कहाँ पे है? Acute developing countries में, right? Where the dependence of people on the ecosystem is significant, right? So लोगों की जो इकोसिस्टम पे, पीपल की जो डिपेंडेंस है इकोसिस्टम पे वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट? एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से क्या फायदा हो रहा है? नेशनल इनकम विल इंक्रीज, राइट? इट विल बूस्ट द नेशनल इनकम. ओके, तो समझ में आ गया. यहाँ पे ऑथर ने क्या किया? सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और कुछ नहीं बताया, राइट? सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author of the passage? So what is the critical message author is saying? Author is saying, जैसे हमने देखा इमेज में कि there is a conflict between the three, right? Livelihood, commercial exploitation, right, and the conservation. Now first, conservation of biodiversity is not an issue to be worried about when some people dependent on ecosystem for their livelihood, right? So पहली लाइन ही गलत है क्योंकि वो बोला है conservation is an issue, right? यहाँ पे not an issue बोल रहा है, so this is wrong. First statement directly wrong है तो, right? Now second, commercial exploitation of forest goes against the fundamental right of the people dependent on forest for food and shelter. अब देखो जनरली क्या होता है कि जो जीएस की नॉलेज यूज करेगा उसको लगेगा कि हाँ दिस इज राइट, बट ऑथर ने ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऑथर ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करी है बिल्कुल भी, राइट? नाउ थर्ड, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सरबेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस, राइट? सो दिस इज करेक्ट, राइट? क्योंकि लाइवलीहुड और डिग्रेडेशन, राइट, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो आप देखो कि अगर उसने बोला है कि अगर हम सिर्फ एक को कंजर्व करेंगे, लाइवलीहुड को, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंजर्वेशन, राइट? सो व्हाट विल हैपन? द रिसोर्स विल डिग्रेडेड, डिग्रेडेशन विल हैपन, राइट? उसकी वजह से क्या होगा कि नाउ फॉर द लाइवलीहुड दे विल एक्सप्लॉइट मोर द नेचुरल रिसोर्सेज देन द मोर डिग्रेडेशन, राइट? सो दे आर इंक्रीजिंग वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस. तो ये प्रॉब्लम बता रहा है ये वाला ऑप्शन, ऑथर भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर पैसेज प्रॉब्लम बोल रहा है, ऑप्शन में भी प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, राइट? ये प्रॉब्लम ही बता रहा है ये वाला सेंटेंस. सो दिस इज करेक्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके? ऐसा उम्मीद नहीं करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल मैसेज, क्या मैसेज दे रहा होता. नाउ ऑप्शन डी को देखते हैं. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड.
राइट। तो एक तो एक्सट्रीम है, कंप्लीटली आ गया, राइट। सो एक्सट्रीम वर्ड का यूज हो रहा है। और सेकंड उसने बोला है कि पैसेज में व्हाट दे आर सेइंग दैट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का बेनिफिट क्या है, दैट इट इंक्रीज द नेशनल इनकम, राइट। तो ऐसा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन डी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। नाउ अब एक और क्वेश्चन है इस पैसेज पे, उसको देखते हैं। Now this is the question with reference to above passage the following assumptions. So we have to find the assumptions. What is the assumptions have been made, right? Now first assumption क्या दिया हुआ है? No country need to depend on ecosystem to boost national income, right? So first of all अगर आप देखो no country है ना, so this is very extreme statement. Second, author is saying that in developing countries, author ने बोला है, right? In developing countries कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है, नेशनल इनकम को बूस्ट करता है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो ये, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, ऑथर ऐसा नहीं बोलेगा, है ना, कि वो बोल कुछ और रहा है और उसका अजम्पशन कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो दोनों अलाइन होने चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ सेकंड, रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्स विद दोज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, राइट। सो ऐसा ऑथर ने कहीं कुछ बोला नहीं है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, या उसने शेयरिंग वगैरह की कोई बात नहीं करी है, राइट। सो रिसोर्स रिच कंट्रीज, राइट। सो ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, डेवलप कंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं करी है, डेवलपिंग के बारे में बात करी है, राइट। वहां भी है इश्यूज, पर वहां पे इतना एक्यूट नहीं है, उसने एक्यूट वर्ड का यूज किया है, राइट। तो ऐसा शेयरिंग वाला उसने नहीं बोला है, उसने सिर्फ प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशंस की बात नहीं करी है, राइट। सो वी कैन नॉट एज्यूम some solution here that sharing should happen, right? So this is not correct, right? So both are not correct, so the answer will be neither first nor second. Okay, so I hope आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है पैसेज को। Okay.